جماعت اہل حدیث کے مایہ ناز خطیب، مذہبی اسکالر، محترم و مکرم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرزاق ساجد کے نیو بیانات، خطبات، دروس قرآن و حدیث کی روشنی میں سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، فیس بک پیج کو بھی فالو کریں۔ بارک اللہ فیکم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین مجلس، احباب گرامی، اہلیان پاکستان کے لیے یہ مہینہ آزادی کی نعمت کے طور پہ لیا دیکھا اور منایا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا کم ہے کہ اس نے ہمارے اسلاف کو، ہمارے بزرگوں کو جس بھی حوالے سے چنا، انتخاب کیا، ان کی قربانیاں آج ہمارے لیے جو دکھ درد انہوں نے سہے تھے، شاید ہم ان سے بچے ہوئے ہیں۔ یہ مٹی، یہ دھرتی، یہ کلمے کی اساس، یہ دو قومی نظریہ، اس کے اوپر بہت کچھ کہنے سننے کو ملتا ہے، لیکن ہمیں اس میں سے مثبت پہلو پہ بات کرنی ہے۔ آزادی کے مقاصد کیا ہونے چاہیے اور ہم انہیں کس حد تک بھلا بیٹھے ہیں، کیا کرنا چاہیے تھا، کیا کر رہے ہیں، اس حوالے سے ہماری انشاءاللہ اس جمعے اور اگلے جمعے ملاقات رہے گی، اور ہم اس میں کتاب اللہ سے بھی رہنمائی لیں گے، بالخصوص سورۃ الکہف۔ وہ لوگ جو اپنا دین بچا کے، توحید بچا کے، عزت اور آبرو بچا کے، ان پڑھ ہو کے، بکریوں کے چرواہے ہو کے وہ اصحاب غار بن گئے اور مشہور ہوئے۔ 309 سال تلک اللہ نے ان جسموں کی حفاظت کی جنہوں نے اللہ کی توحید کو اپنایا تھا۔ یہ خالصتاً سورۃ الکہف ایمان کو، یقین کو، اتقان کو بچانے کی صرف داستان ہی نہیں ہے، بلکہ یہ رب کا وہ وعدہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سے کیا اور کہا کہ اپنی امت کو کہہ دو، وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ، کہ حق، حقیقت، شریعت، وحی اور توحید، وحدانیت، کبریائی، یکتائی یہ تمہارے رب کی طرف سے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جس کا دل کرتا ہے مان لے۔ یہ آزادی کا ایک پہلو ہے جس پہ میں انشاءاللہ تھوڑی دیر میں بات کرتا ہوں۔ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، اور جس کا من چاہے وہ انکار کر دے۔ یہ زبردستی کا سامان نہیں ہے، حق حق ہے، جو لینا چاہتا ہے بسم اللہ، جو نہیں لینا چاہتا چھوڑ دو۔ لیکن اِنَّا أَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ نَارًا، ہم نے ظالموں کے لیے، منکروں کے لیے جیل بنا رکھی ہے، اور وہ جہنم کی جیل ہے۔ احاطہ بہم سرادقها، جس کی دیواریں، جس کی کناتیں، جس کے شعلے وہ انہیں چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوں گے۔ وَإِن يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ، وہ جیل ایسی ہے، وہ پابندی ایسی ہے، وہ پکڑ ایسی ہے، وہ سختی ایسی ہے کہ اگر اس میں پانی مانگے گے تو ہم ان کو پگھلتے ہوئے تانبے جیسا پانی دے گا، جو ان کی شکلیں بدل کے رکھ دے گا، جو ان کی کھال ادھیڑ دے گا۔ یہ بیس شراب، کائنات کی سب سے بری شراب اور مشروب یہ ہے، وساعت مرتفع، اور کیسی یہ رفاقت ہے اور کیسی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے متصل بات کہتے ہیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، دنیا میں رہ کے جو ہمارے پابند رہے، آزاد منش نہیں بنے، ہمارے باغی نہیں بنے، اور صالح اعمال کرتے رہے تو ہم ان کے اعمال کو ضائع کرنے والے نہیں ہیں۔
उलाइका लहुम जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहिमुल अनहार, उनके लिए खुली जगह होंगी, जन्नतें होंगी, जन्नात और बागात होंगे, वो जिनके नीचे दरिया बहते होंगे, उन्हें वहां सोने के जेवर और कंगन पहनाए जाएंगे। वयलबसून थियाबन खुज़रन मिन सुंदुसिन व इस्तबरक, उन्हें शफाफ बारीक किस्म का रेशम पहनाया जाएगा, और अगर कोई मोटा चुनेगा तो वो मिलेगा मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, मजे के साथ बड़ी खूबसूरत बैठक में बैठे होंगे, तकिए लगे हुए होंगे। नेमत तवाब व हसनत मुर्तफका, एक ये भी साथ है और कितना ही अच्छा साथ है, और कितनी ही अच्छी ये जगह है, और कितना ही इसका अच्छा अजर है। उसके बाद अल्लाह ताला ने दो भाइयों की दो बागात की मिसाल दी है। एक आजाद मनश था, दुनियादार था, और दूसरा उसको अल्लाह के साथ जोड़े रखता था। इंशाअल्लाह इस पे बात करते हैं। पहले पाबंदी पर और आजादी पर थोड़ा देख ले, क्योंकि मैं जिन लोगों में बैठता उठता हूं उनका मौक़िफ़ यह है कि अगर आजादी मिल गई है तो इसे आजादी रहने दें, जो करना चाहता है करने दें। तो गुजारिश है कि पहले अपनी असल देख लें। अल्लाह ने मखलूकात तीन तरह की बनाई है। मालिक ने फरिश्तों को टोटली पाबंद बनाया है। ये पाबंद है, रिमोट कंट्रोल है, ये अपनी मर्जी नहीं कर सकते, वही करेंगे जो रब कहेगा। अपनी मर्जी से एक स्टेप, एक कदम भी नहीं ले सकते। ये इबादुल मुकर्रमून है, ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफअलून मा युमरून। ये रिमोट कंट्रोल मखलूक है। अगर यहां दुनिया में रह करके कोई सूफी अल्लाह बन के फरिश्ता बनना चाहता है तो फिर वो खादिमों वाली लाइन में जाना चाहता है, क्योंकि फरिश्ते रब ने खादिम बनाया। दूसरे नंबर पे वो मखलूक है जो अल्लाह ने फ्री हैंड बनाई है, शैतान। दुनिया में तो आजाद है, जो मर्जी कर, क़यामत के दिन देखी जाएगी। यहां उस पर कोई पाबंदी नहीं, नेकी करे ना करे, भलाई करे ना करे, बुराई करे, जो मन में आए उसे खुली छूट दे रखी है। मर्जी अल्लाह की है, वो बेहतर जानता है कि हिकमत क्या है। तीसरे नंबर पे अल्लाह ने इंसान को बनाया है, जो कायनात का, सारी मखलूकात का सरदार भी है, अफजल भी है, उनमें अशरफ भी है। इसे बुनियादी तौर पे अल्लाह ताला ने पाबंद बनाया है, फिर बीच में आजादी दी है, फिर पाबंद कर दी है। पाबंद कैसा बनाया है? अल्लाह ने इसे अपने हाथ से जैसा बनाया है, यह वैसे ही बन सकता है, अपनी मर्जी से डिमांड नोटिस पे नहीं बन सकता। अल्लाह ने इसे जिस मकान में रखना है, ये उस मकान में रहेगा। वो 6 चीजें जो हमने नहूसत में पढ़ी हैं गुज़श्ता मुलाकात में, वो ज़हन में रखिएगा कि ज़मान हो, मकान हो, सामान हो, इंसान बजाते खुद हो, ये इन चीजों के अंदर पाबंद है। ये अपनी मर्जी से बाप नहीं बदल सकता, मां नहीं बदल सकता, अपनी जन्मभूमि नहीं बदल सकता। मेरा मानना है कि अगर हमें पैदा होने से पहले शऊर होता और अल्लाह इख्तियार दे देते कि कहां पैदा होना है बता दीजिए, तो हम नक्शा पकड़ के बैठे होते। अक्सर कहते अल्लाह मक्के मदीने च भेज दे, तो बहुतिया ने कहना सी अल्लाह उधर भेज दे जिथे रौनक बाबा है, शोल मेला। आसानियां है, दौलत है, फरावानी है, हुस्न है, जमाल है, शराब है, शबाब है, कबाब है, मनमर्जी की जिंदगी है। जगह में हम पाबंद है, हमारी हैत, वज़ा, कता और हमारी जिन्स, इसमें भी हम पाबंद है। रब ने जैसी बना दी है। हाँ, हमें थोड़ी बहुत अल्लाह ने आर्टिशन करने की इजाजत दी है, वो आजादी है। मैंने तुझे मर्द बनाया है, तुझे अच्छा नहीं लग रहा, चल आर्टिशन करवा ले, लेकिन हुदूद भी बता दी। सूरतुल दहर में, सूरतुल इंसान में अल्लाह ने कहा हल अता अलल इंसान हीनुम मिन अद-दहर लम यकुन शैय्यन मज़कूरा। आज बना फिरता है और अपने आप को बड़ा समझ रहा है। इंसान को वो वक्त याद नहीं, वो जमाना याद नहीं कि जब ये कुछ भी नहीं था, इसका तज़किरा भी नहीं था। इन्ना खलक़नल इंसान मिन नुत्फ़तिन अमशाज, हमने इसको मां और बाप के मिक्सचर से, नुत्फे के मिक्सचर से बनाया है, मिला जुला सा। नब्तली, हमने इसे वहां भी आजमाया है। आजमाइश पैदाइश से शुरू हो गई है। फजअलनाहु समीअन बसीरा, हमने आंखें भी दे दी, कान भी लगा दिए, शऊर के लिए हवा से खमसा भी दे दिए।
इन्ना हदैना उस सबीला, हमने रास्ता दिखाने के लिए अंबिया भी दे दिए, सिरात मुस्तकीम भी बता दिया, जहन्नम का रास्ता भी बता दिया। इम्मा शाकिरुम व इम्मा कफूरा, अब इसकी मर्जी है शुक्र गुजार बन के हमारी जन्नतों की तरफ सिरात मुस्तकीम पे आ जाए, या नाफरमान बन के आजादियां इख्तियार करके अपनी मर्जी करता रहे। हजरात, ये कहने के बाद अल्लाह ताला ने पूरी सूरत में हिला के रख दिया, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लू कंडे नहीं जिन्हों कहते, सर्दियों में कपड़े उतारे हुए और जो कैफियत होती है जिस्म की, उससे भी बढ़ के ये सूरत खौफनाक है। अल्लाह कहते हैं इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासिला व अगलाला व सईरा। दुनिया में जो आजादी रहमान को छोड़ के शैतान के बनना चाहेंगे, हम कुछ नहीं कहेंगे। बता दिया है कि तू बंदा मेरा है, मैं मालिक तेरा हूं, बनाया मैंने है, खालिक मैं हूं, तू मेरा है, मैं तेरा हूं, मेरा बन के रहना। लेकिन अगर कोई बिद के कोई भागे, नाफरमान बने, सरकश बने, बागी बने, इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासिला, हम दुनिया में भी बांध सकते थे, इसने कहना था मजबूर हूं। अल्लाह ने इन चीजों में मजबूर बनाया है, आगे उसे आजादी दे दी है। मुसलमान बन तेरी मर्जी, काफिर बन तेरी मर्जी, फरमाबरदार बन तेरी मर्जी, नाफरमान बन तेरी मर्जी। आजादियां इख्तियार करके जो तेरे दिल में आए वो करना चाहे वो कर, या शरीयत से पूछ के कुछ पाबंद हो जा। रिमोट कंट्रोल तेरे हाथ में है, अब तेरी मर्जी है, तो किस चैनल पे चलता है? तो कुरान पे आता है, सीरत पे आता है, हदीस पे आता है, फर्मा बरदारी पे आता है, या दीगर जितने चैनल है वो चलता है, वो तेरी मर्जी, हम तेरा हाथ नहीं पकड़ेंगे। समझाएंगे जरूर, कहेंगे जरूर। लेकिन अगर दुनिया की आजादी रहमान की आजादी हुई कि रब से जान छुड़ानी है, आजादी का मतलब अगर ये ले लिया कि तौहीद से जान छुड़वानी है, अल्लाह की उलूहियत और बंदगी से जान छुड़वानी है, अगर ये मतलब ले लिया कि पैगंबरों की नहीं माननी, मनमानी करनी है, हदीस से सुन्नत से जान छुड़वानी है, उसवा कुदवा और सीरत से मैंने भागना है, अगर आजादी का यह मतलब ले लिया कि ईमान से दूर होना है, और यह माना ले लिया कि फरिश्ते कुछ नहीं है, मैं आजाद हूं, किताबें कुछ नहीं है, मैं आजाद हूं, अंबिया कुछ नहीं है, मैं आजाद हूं, क़यामत नहीं आनी, मैं आजाद हूं, ए जहान मिठा अगला किस मिठा, मौत से डराया जा रहा है। नहीं मेरे भाई, अगर यह आजादी है तो जवाब सुनिए। अल्लाह फरमाते अगर ये नमाज से आजादी ले गया, रोजे से आजादी ले गया, अगर आजादी का मफहूम अल्लाह की पाबंदियों के खिलाफ जाना है, शिरक पे अल्लाह की पाबंदी है लेकिन ये आजादी के साथ जा रहा है, बिदआत पर रब ने पाबंदी लगाई है मगर ये कलमा पढ़ के फिर आजादियां कर रहा है। अल्लाह ताला ने बुराइयों पे पाबंदी लगाई है लेकिन ये पाबंदियां तोड़ रहा है, अल्लाह ने हदबंदी की है और ये उन हुदूद को क्रॉस कर रहा है। अब अल्लाह कहते हैं इन्ना आतदना लिल काफिरीना सलासिल व अगलाल व सईरा, हमने इनके लिए हथकड़ियां भी बनाई हैं, बेड़ियां भी बनाई हैं, गले पे तौक भी बनाए हैं और गर्म होंगे, ठंडे नहीं होंगे, जलते हुए कोयलों से जहन्नम की आग से तपा के सुरख करके हम इनके गले में तौक डालेंगे। कभी इस सूरत को पढ़िए और शायद जो फजर की नमाज पढ़ते हैं जुमे वाले दिन उन्हें पता है दूसरी रकत में ये पहले पढ़ा के फिर जुमे में लाया जाता है, फिर कहा जाता है कि अब सूरह कहफ भी पढ़ लेना। ये आजादी और पाबंदी की सूरत है। कौन मेरा गुलाम है, कौन मेरा बंदा है, कौन मेरा पाबंद है, कौन शुतर बेमुहार है, कौन मदर पिदर आजाद अपने आप को तसव्वुर करता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं इन्नल अबरारा, लेकिन मेरी पाबंदियां करने वाले मैंने आजाद बना दिया, आजादी दे दी, लेकिन फिर भी मुझसे डरने वाले। और कैसे डरने वाले? लोगों को देख के नहीं, सारी रात क़याम किया, तहज्जुद पढ़ी, नवाफिल पढ़े, जो रब ने मुकद्दर में लिखा था जिस्म का हक दिया, जो अहले खाना का हक था अदा किया, रब की दरबार में खड़े होके मुसल्ले पे गिड़गिड़ाते रहे, आंसू बहाते रहे, सजदा करके अल्लाह से मुनाजात करते रहे। और जब फजर पढ़ ली ना तो फिर क्या कह रहे हैं? अस्तगफिरुल्लाह व बिल असहार हुम यस्तगफिरून। अल्लाह रात इबादत का हक अदा नहीं हुआ, जितनी पुरसुकून तूने रात दी थी और जितना आराम दिया, जितना चैन दिया, जितनी नेमतें दी, अल्लाह उसका हक हम नहीं अदा कर सके। अकड़ नहीं है, दिखावा नहीं है, नमूद भी नहीं है, नुमाइश भी नहीं है,
सुबह लोगों को नहीं कहते फिरते मैं तो जद पढ़ना, बल्कि मिट के वबिल असहारी हम यस्तगफिरून, पाबंद से खुद को। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं माँ बाप ने कोई पाबंदी नहीं लगाई होती लेकिन वो खुद ख्याल रखते हैं। अल्लाह ऐसे बंदों का जिक्र करते हैं, इन्नल अबरार, नाम अबरार रख लेने से बंदा अबरार नहीं हो जाता, ये सिफतें। यशरबून मिन कअसिन काना मिजाजुहा काफूरा, अल्लाह इन्हें जन्नत में जो शराब पिलाएंगे ना, जो सड़ता है सड़े, जो जलता है जले, जो बोलता है बोले, जो कहना चाहता है कहे, जो मजाक उड़ाना चाहता है उड़ाए, नसीब अपने अपने। अल्लाह का शुक्र है हम मिट के कहते हैं फखर नहीं। अल्लाह तो तौफीक ही नहीं दी कि एदी शक्ल देखिए, हाथ लगाएं किस उम्मीद पे? क्या दुनिया में अगर आप और मैं ढूंढना चाहें तो मिल नहीं सकती? इसी मंडी में मिलती है, इसी बाजार में मिलती है, इसी शहर में, इसी धरती पे मिलती है, इन्हीं हाथों ने बना रखी है और दावते हैं लीजिए पीजिए, लेकिन ये रुके रहे। अल्लाह कहते हैं मैं इनकी मेहमान नवाजी जो करूंगा ना, इन्होंने वो फ्लेवर दुनिया च चखे ही नहीं होना। यहां तो पुलिस मुंह सूंघ के कहती है ना बो आउं रही है, ये स्मेल वाली, कीड़ों वाली, गंदी गिलासतों वाली पी के कहता है पी पी तेरा ठंडा हुए जी मेरे और किसी नल की। उधर क्या है? यशरबूना मिन कासिन, ऐसे आप खोरे होंगे, ऐसी चीजों में शराब डाल के दी जाएगी, काना मिजाजुहा काफूरा। एक तो काफूर है ना जो मुश्कबूर मुर्दों पे डालते हैं, ये वाला नहीं। अल्लाह की जन्नतों के काफूर वाला फ्लेवर होगा, ऐनन चश्मे फूट रहे होंगे, यशरबु बिहा इबादुल्लाह, अल्लाह के बंदों को यहां से पिलाया जाएगा, युफज्जिरूनहा तफजीरा, ये जिधर जिधर जाएंगे ना उसका चश्मा वही वही इनके कासे के साथ साथ जाएगा। ये नहीं है कि यहां झुक करके पैमाना जो सुराही भरती है तो उसकी धार आगे पीछे हो जाए, गिलास से, कांच से, आब खोरे से, जाम से दाएं बाएं हो सकता है, गिर सकता है। जहां भी जाएंगे ये चश्मे उनके साथ साथ, काफूर उनके साथ साथ, टेस्ट उनके साथ साथ। यूफून बिन नज़री, दुनिया में जो रब के साथ नजरें मानी थी, जो बातें की थी, जो कलमा पढ़ा था, जो शर्तें लगाई थी, जो ईमान लाए थे, जो बात की थी, इन्होंने वो पूरी की थी। वह यखाफून यौमन, पूरी आजादी होने के बावजूद भी इनका मकसद जिंदगी क्या था? काना शर्रुहु मुस्ततीरा, ये उस दिन से डरते थे जिस दिन रब की पकड़ चारों तरफ फैली हुई, उस दिन से ये डर गए थे। हजरात, आजादी का अगर सही मफ़हूम किताबुल्लाह की ज्यादा नहीं, दो सूरतों से, सिर्फ सूरह काफ से और सूरत उद्दार या सूरत अल इंसान, दो नाम, इससे सीख लें, मजा आ जाएगा। वह युतइमून अत्ताआमा, ये दुनिया में क्या करते थे? इन नेकों की खूबी क्या थी? ये खाने खिलाते थे, खाने। सर जी आप भी खिलाते होंगे, मैं भी, अल्लाह जो तौफीक देता है खिलाते हैं, लेकिन ये अंदाज देखिए, वह युतइमून अत्ताआमा अला हुब्बिही, बड़ी मोहब्बत के साथ। ये नहीं कि मिस्कीन भतीजा आ गया, यतीम भांजा आ गया तो खाने पका टाइम है, उस वक्त मजबूरी है, चलो इन्होंने भी दे छो, इन्होंने पता नहीं खुशबू आ जाती है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। मोहब्बत के साथ, चाहत के साथ, रगबत के साथ, प्यार के साथ, तड़प के साथ, आरज़ू के साथ, तमन्ना के साथ, मोहब्बतों के साथ। किन को बुलाएंगे? बड़े बड़े तगड़े लोगों नहीं, इन्हों के दस्तरखान ते माड़े माड़े मिस्कीन लोग, यतीम लोग, असीरा या कैदियों तक, जेलों तक जो है मोहब्बतों से खाने पहुंचाने वाला है। ये खूबियां अल्लाह ने आजाद लोगों की गिनी है। और खिला के वहां पे कुछ सेल्फी नहीं। आपको पता है कि माजी में भी सेल्फियां बन सकती थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मामूली से भी एक काम की, जब हज्जतुल विदा में हुआ है, 1.25 लाख सहाबा थे, तो 2.5 लाख आंखें मेरे महबूब की लाइव मंजर कशी कर रही। एक एक अदा, एक एक अमल, एक एक मामला, गुफ्तगू नोट कर ली गई, हम तक पहुंची। यहां भी नोट करें, खिला के क्या कहते हैं? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, ये हमने सिर्फ अल्लाह के लिए खिलाया। कल मैं फेसबुक पे एक देख रहा था, एक आदमी ने हजारों डॉलर भेजे हैं रजा की तरफ। जब नीचे नाम लिखने की बारी आई है तो उसने अपना नाम शो नहीं किया। नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शकूरा,
ہم اس کے بدلے میں تم سے یہ نہیں کہتے ہمارا کام کر دینا، برتن دھو دینا، مزدوری کر دینا، جب ہم آواز دیں تو آ جانا، یتیم ہو مسکین ہو ٹھیک ہے، کمزور ہو، تمہاری جگہ پہ رب ہمیں بھی لا سکتا تھا۔ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، جزا تو بڑی دور کی بات ہے، ہم تم سے شکریہ کا مطالبہ بھی نہیں کرتے۔ یہ نبی کے صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے، ابرار ایسے لوگ تھے، خود بھوکے رہ لیتے تھے لیکن کھلانے والے پلانے والے۔ مالک فرماتے ہیں ان لوگوں کی کیفیت خود بولیں گے، بیان دیں گے، انا نخاف من ربنا یوما عبوسا قمطریرا، ہم اس دن سے ڈرتے ہیں جس دن مالک غصے اور تیوری میں ہوگا۔ ہمیں نہ کبھی رب غصے والا محسوس ہوا ہی نہیں، ہم بڑا ایزی موڈ ہوتے ہیں، ہیپی ہیپی کہہ لیتے ہیں، کوئی نہیں یار یہ مولوی نہیں سختی کر رہا، اللہ بڑا غفور الرحیم، انہیں ادھر بخش دینا، انہیں سانو جڑا نا جی ڈرائیور رکھ دیا، مولانا برق، مولانا طوفان، مولانا بجلی، مولانا کرنٹ، مولانا یہ مولانا نام رکھے ہوتے ہیں، تو ڈرائی رکھتا ہے جی سانو۔ نبی کی خصوصیات میں سے بشیروں و نذیرا، وہ خوشخبری دیتے تھے تو ڈراتے بھی تھے۔ پورے قرآن کا یہی اسلوب ہے، جہاں جہنم کا ذکر ہے ساتھ جنت کا ذکر لے کے آئے گا، اگر جنت کا ہے تو جہنم کا تذکرہ آگے پیچھے ضرور ہوگا۔ اچھے لوگ اور برے لوگ تقابل کر کے اللہ بتاتے ہیں، یہ اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہوئے یہ ڈر کے رہے، پابند رہے، ذمہ دار رہے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فوقاہم اللہ شر ذلک اليوم، قیامت کے دن ان نیک لوگوں کو اس دن کی گرم ہوا بھی نہیں لگے گی، گرم ہوا بھی نہیں لگے گی۔ کئی دفعہ خبر سنتے ہیں کہ زلزلہ آیا ہے اور ہمیں محسوس بھی نہیں ہوا ہوتا، یہ اللہ کا کرم نہیں۔ بدر کے اندر جب تلواریں آپس میں ٹکرا رہی تھی، تیروں کی بارشیں تھی، نیزے اچھل رہے تھے، وہاں اللہ نے اپنوں کو نیند دے دی۔ آپ نے سورہ کاف میں بھی یہی پڑھا ہے، فضربنا علی آذانہم، اللہ نے ان کے کانوں کے اوپر، انسان کا سب سے آخر میں جو پردہ پڑتا ہے وہ کان پہ سوتے ہوئے، معمولی سی بھی آواز پہ آنکھ بند ہوتی ہے، آنکھ لگ رہی ہوتی ہے، آواز آتی ہے تو بندہ تھوڑا سا گھبرا کے اٹھ جاتا ہے۔ اگر کانوں کے اوپر آواز نہ آئے تو نیند مزے کی ہوتی ہے، گہری نیند۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے کانوں پہ لوریاں دے کے، پردے دے کے 9 سال جمع 300 سال 309 سال سلایا، حفاظتیں کی۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ اللہ نے ان کو قیامت کے دن معمولی سی پریشانی بھی نہیں آنے دینی ہے، معمولی سا شر اور برائی، اللہم اجعلنا منہم، اللہ ان میں سے کر دے۔ اللہ تیرے لیے مشکل نہیں، ہمیں کچھ ایسا پابند کر دے اپنا کہ اس قیامت کی خبر بھی نہ ہو۔ میں اس کی 2 مثالیں سامنے رکھتا ہوں۔ ہم جب گفتگو کرتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، جسم پسینے والا ہوتا ہے، ہمیں نہیں پتا ہوتا۔ ٹیسٹ کروانے گئے تو انہوں نے کہا جی آپ ہماری مشینوں کے مطابق 2011 میں ایکسپائر ہو چکے ہیں، آپ کو 31 مرتبہ فالج آ چکا ہے۔ میں حیران، میں ہنس رہا تھا، میں نے کہا یار مینوں تو پتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا نہیں ہے، ہوا ہے، لیکن آپ کرتے کیا ہے، آپ کا کام کیا ہے، ڈیٹیل بتائیے۔ تو سب کچھ چھوڑ کے سر پکڑ کے بیٹھ کے کہتے یار اتنا جھوٹ مشین نہیں بولتی، کچھ ہے۔ اب آپ کو کیا بتاؤں، جب فیصلہ آباد میں زلزلہ آیا اور پورے ملک میں آیا، ابھی جو ریسنٹلی تھا بڑا شدید تھا، میں موٹر وے پہ تھا اور جو پیچھے خطیب چھوڑ کے آیا وہ اپنا ممبر بھی چھوڑنا پڑا، انہیں اپنا مائک بھی چھوڑنا پڑا، مسجد چھوڑنی پڑی، بھاگ کے باہر نکلے، زلزلہ اتنا شدید تھا۔ لیکن میں سفر میں تھا، آلریڈی وائبریشن ہو رہی تھی، مجھے نہیں پتا چلا کہ وہاں پہ کوئی زلزلہ آ رہا ہے۔ وہ بیٹے نے فون کیا، بابا کہاں پہ ہیں؟ فلاں جگہ پہ ہوں، بڑا شدید زلزلہ ہے، پھنسے ہوئے ہیں، پتہ نہیں بچ پاتے ہیں کہ نہیں۔ گھر رابطہ کیا تو بچوں نے بتایا زلزلہ بڑا شدید، لیکن ہمیں محسوس نہیں ہوا، حالانکہ وہاں زلزلہ ہے۔ اللہ والوں کی توجہ قیامت کے دن رب کے کرم کی طرف، نعمتوں کی طرف، سائے کی طرف، مشروبات کی طرف، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کی طرف، حوض کوثر کی طرف، عطاؤں کی طرف، نعم کی طرف اتنی ہوگی کہ پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کچھ ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا۔ یہ اللہ خود کہہ رہے ہیں
फवकाहुमुल्लाहु शर्र ज़ालिकल यौम, ये बचते रहे, रब ने बचा लिया। नज़रतन व सुरूरा, इनके चेहरे पे मामूली सी भी परेशानी नहीं होगी, फ्रेश होंगे, तरोताजा खिले हुए गुलाब की तरह पुरसरूर। और दूसरे लोगों की क्या हालत होगी? जुमे की दूसरी रकत में हम पढ़ते हैं अल्लाह अता का हदीसुल गाशिया वजूह यौमइदिन खाशिया आमिलतुन नासिबा तस्ला नारन हामिया तुस्का मिन ऐनिन आनिया लैसा लहुम तआमुन इल्ला मिन ज़री ला युस्मिनु व ला युग़नी मिन जू। इनके चेहरों के रंग फक रंग उड़े हुए, वजूह यौमइदिन खाशिया, डरे हुए, सोए हुए, घबराए हुए, पसीने छूटे हुए। वो भाई तुम्हें क्या हो गया है? और दूसरी तरफ वो वजूह हुई यौमइदिन नाज़िमा, वजूह हुई यौमइदिन नाइमा, बड़े नरम मुलायम, खिंचे हुए, नहीं कोई परेशानी नहीं, कोई टेंशन नहीं, तरो ताजा है। ये वो हैं अल्लाह कहते हैं जो दुनिया के अंदर मेरी पाबंदियां करके आए। व जज़ाहुम बिमा सबरू, इनका भी दिल करता था कि आजाद हों, लेकिन इन्होंने सब्र किया। इनका भी दिल करता था कि बिल्कुल बेबाक हो जाए, लेकिन इन्होंने सब्र किया, बड़ी सख्तियां झेली। अल्लाह कहते हैं हम क्या करेंगे? जन्नतों व हरीरा, हम कायनात की सबसे वीवीआईपी सोसाइटी रिहायश के लिए, रहने के लिए, ऐसी सोसाइटी किसी ने नहीं देखी होगी जहां हर तरफ रेशम, मुलायम, नरम। दुनिया की सख्तियों के बदले में रब ने नरमी दे दी है। ये कहने के बाद अल्लाह कहते हैं मुत्तकीन फीहा अलल अराइक, इनके लिए दुनिया में मैंने देखा है, वैसे मैं कभी कभी हैरान होता हूं, कुरान की ये आयतें कितनी कमाल मंजर कशी करती। जितने तमाशबीन होते हैं ना, ज्यादातर तकिए लगा के कलीन बिछा के बैठे और दूसरों से मजाक कर रहे होंगे। ओ नहीं जी तुसी तो है ही, तुसी जे तुहानू केड़ा कोई कदी कोई शायद चंगी लगी है। अल्लाह कहते हैं कयामत के दिन जन्नती जहन्नमियों से मजाक करेंगे, तकिए लगे हुए होंगे, टेक लगाई होगी, मौज की जिंदगी होगी। मुत्तकीन फीहा अलल अराइक ला यरौन फीहा शम्सन वला ज़महरीरा। दुनिया में पता क्या है? देहात के रहने वाले जानते हैं, शहरियों को क्या पता। मंजीर जिथे डाई दी है ना दरखत, एक जगह तो धुप आ जाए तो अगे मंजा खिंच लईदा, फिर धुप आ जाए अगे खिंच ली, करदे कई दफा विचों छां संघनी नहीं होंदी, तो बीच में से धूप झरने दिखा रही होती है, तो बंदा गाढ़ा दरख्त। अल्लाह कहते हैं हमने जन्नत में कोई ऐसी जगह रखी नहीं है कि जहां इन पे धूप पड़े, वला ज़महरीरा, ना गर्मी ज्यादा है ना ठंडक इतनी है कि कंबल मंगना पड़ जाए, कांपने लगे। अल्लाह अकबर। आपको पता होना चाहिए जहन्नम के अंदर अल्लाह ने एक अजाब रखा है, ठंडक का अजाब, जलाने का अजाब। जैसे बर्फ जला देती है, ज्यादा देर बंदा हाथ में नहीं पकड़ सकता, लेकिन यहां मालिक कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होगा। वदानियतन अलैहिम जिलालुहा व दुल्लिलत कुतूफुहा तदलीला, साए खुद आगे झुक के इनके ऊपर साया पिघल होंगे, और दरख्तों की शाखें और खोशे झुक के अंगूर मुंह चाण के कहणगे इन्ना इंतजार किया है, सोनियो सानू खा ही लो। सर जी मैंने आज तक अभी तक कोई अंगूर नहीं देखा। हाँ, अंगूर को कोई लाने वाला आके कहे, उसका साथ हो, चाय हो और उसके हाथ की हो। अल्लाह कहते हैं ये सारा कुछ मैंने तुम्हारे लिए तैयार किया है, आओ बैठो जरा मजलिसे हो जाएं। वयुताफु अलैहिम बिआनियतिन मिन फिद्दतिन व अक्वाबिन कानत कवारीरा, हमने इतने हसीनो जमील बच्चे वहां रखे होंगे। ये कौन से बच्चे हैं? मुफस्सिरीन ने जो यहां लिखा है ना, ये वही हैं जो हमारे बच्चे पहले फौत हो जाते हैं, हमारी खिदमतों के लिए पहले गए हुए हैं। हालात का पता है। अब्बू 96 में जब हज पे आए तो सारे लोग उनके साथ अजनबी फिर रहे थे, और उन्हें आगे कोई लेने वाला खड़ा था, वेलकम करने वाला, जगह जगह पे दिखाने वाला, हर चीज। तो वो लोग रशक कर रहे थे कि साडा भी कोई इत्थे हुंदा, सानू नहीं इदां दसदा। एयरपोर्ट पे अगर कोई आपको वेलकम करने वाला आ जाए, ले ले, और जो है वो शानो शौकत होती है। प्रोटोकॉल लगे हुए हैं, प्रोटोकॉल लगे हुए, बैठे हुए, तकिए लगे हुए। ये आप खोरे लेके, कास लेके, जाम लेके, हसीनो जमील बच्चे जो जवान हो चुके हैं, जन्नती हुस्न मिल चुका है, वहां का मेकअप है, वहां अक्वाबिन कानत कवारीरा, चांदियों के, यहां तो कहते हैं ना जी सोने चांदी के बर्तन हो, चिट्टे चमकदे होण, इन्हां नूं
फलां कीता होवे, इन्होंने कली कराया होवे, वो जन्नती चांदी के बने हुए बर्तन, क्रिस्टल के, शीशे के तैयार बर्तन अल्लाह उनके ऊपर जो है इन लोगों को घुमाएंगे। कवारीर मिन फिद्दा, उनके ऊपर जो है तह चांदी की चढ़ी होगी। कद्दरूहा तकदीरा, खूब जो है उन्हें पता होगा किसको कितना देना है, कितना पिलाना है। वयुस्कौना फीहा कासन काना मिजाजुहा जंजबीला, दुनिया में सब लोगों ने जंजबील का कावा नहीं पिया, इल्ला के जिन्होंने उम्रा किया हो, कहीं गए हों, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਣ के दस दे जी कौड़ा घुट भरिया नहीं जाता उन्हों का कावा। ये उनसे पूछो कि उस कावे की कीमत क्या है। जंजबील का कावा कभी जन्नत में, मशरूब फ्लेवर्स, अल्लाह पता नहीं कितने मजे से बातें कर रहे हैं अपने बंदों के साथ कि तुम पाबंद हो, पाबंद मत समझना, मैंने तुम्हारे लिए आगे बहुत कुछ बना रखा है। ऐनन फीहा तुसम्मा सलसबीला, मैंने वहां चश्मे रखे हैं, सलसबीला, चलता रहे, साथ साथ रहे, कभी बंद ना होने पाए, कभी खुश्क ना होने पाए। वयतूफु अलैहिम विल्दानुम मुखल्लदून, इनके साथ आगे पीछे इनके ये बच्चे जो हैं हमेशा नौकर चाकर बन के रहेंगे, मुहिब बन के, खैर खा बन के इनके ऊपर। कोई गेट खोलने वाला आगे आ जाए ना तो बड़ी चुदराहट महसूस होती है। क्या ख्याल है? कोई आगे जूता सीधा कर दे ना तो बंदे को बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जन्नत के सारे मामला इज़ा रअयतहुल हसिबतहुम लुलुअम मंसूरा, दुनिया के मोती जो हैं वो उनको देखते ही आपको याद आएंगे, यार किड्डा सोना, यहां नए नए नाम रखते हैं, ये मेरा बुग्गू है, ये मेरा गुगला है, ये मेरा मिठा है, ये मेरा माशाल्लाह। क्या अपने बच्चे जब खूबसूरत लगते हैं तो वालिदैन तरह तरह के नाम, वही बच्चे जब सामने आएंगे तो कहेंगे मोती ने मोती, लोलो ने, मरजान ने, वह इदा रईता तम्मा रईता, उनको देखेंगे, कभी नेमतों को देखेंगे, कभी उनके हाथ में थाल देखेंगे, कभी जाम देखेंगे। वह मुल्कन कबीरा, नेमते ही नेमते ताहते नजर, जन्नती जन्नत, रब की बादशाहत, और ये मुल्क आलियहुम थियाबुन सुंदुस खुजुरुन व इस्तबरक। आपने कभी अरबियों को देखा है? नीचे उन्होंने मोटा कपड़ा पहना होता है, ऊपर बारीक सा अबाया लिया होता है जिसके अंदर से रुमाल भी नजर आ रहा है, नीचे वाले कपड़े भी नजर आ रहे हैं। अल्लाह कहते हैं नीचे हम सब्ज रंग का मोटा अस्तर का इनको पहनावा पहनाएंगे, और ऊपर हमने बारीक सुंदस लान, तो दुनिया में देखी आपने, अल्लाह कहते हैं हम सुंदस रेशम बारीक ये इनके पहनावे कर देंगे। वह हुल्लू असाविर मिन फिद्दा, हम इनको कंगन पहना देंगे। मैं अल्लाह की कसम दुनिया में चाहूं तो कंगन बना सकता हूं, हाथ में कड़े डाल सकता हूं, मेरा एरिया भी ऐसा है, साथ लोग भी, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं डालता कि दुनिया में महबूब ने मना किया है, रोका है। वहां मिलने हैं, वह सकाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अब आप इसका जो मर्जी माना कर लें, अल्लाह बच्चों के जरिए पिलाएं, साकियों के जरिए पिलाएं, या रब खुद साकी बन जाए और जाम इंसान के आगे हूं, शराबन तहूरा। मैं इसका माना तर्जमा दूसरा नहीं करना चाहता, सीधा ही करता हूं। अल्लाह कहते हैं हम इनको जो मशरूबात और शराब पिलाएंगे, ना उनमें नशा होगा, ना गौल होगा, ना कोई गंदगी होगी, ना गिलाजत होगी, ना फजूलियात होगी, ना लग़वियात होगी, ना यावागोई होगी, ना हल्ला गुल्ला होगा, बड़ी पाकीज़ा। इन्ना हाज़ा काना लकुम जज़ाअन व काना सायकुम मशकूरा। और मेरे बंदो, ये बदला है तुम्हारी उन पाबंदियों का, तुम्हारी मेहनतों का, ये जजा है, और तुम्हारी उन काविशों का आज हम बदला दे रहे हैं। इन्ना नहनु नज़्ज़लना अलैकल कुरान तंज़ीला, हमने आप पे कुरान उतारा है, उतारना जैसे होता है। फस्बिर लिहुक्मि रब्बिक, इन पाबंदियों में रह के थोड़ा सब्र कीजिए। 4 दिन की जिंदगी हौसला कीजिए, यूं गुजरनी है। 309 साल लेटा के अल्लाह ने पूछा था कितने रहे हो, एक दूसरे से सवाल करने, कहने लगे यार एवं ही है, सवेरे आए साउन तो दोपहर हो गई है, यौम हो बाद यौम, एक अद्धा दिन ही लगा है। और लेटे कहां थे? बिल्कुल खुली जगह में, गार ये नहीं थी कि ऊपर से बंद थी। हम पढ़ेंगे ना जब इंशाल्लाह तो मजा आएगा कि सीन क्या था। हम ये मशरक मगरब में, शुमाल की तरफ उसका मेन मुंह था और ऐसे ऊपर ओट थी, इस तरफ भी मगरब की तरफ भी ओट थी, और पांव वाली साइड भी ओट थी, इधर से रास्ता था। अल्लाह ताला जब सूरज को चढ़ाता था, इस तरफ धूप है, और घूम के जब ऐसे
थोड़े से जाविये से पीछे आता था तो मेरा मालिक उन पे धूप भी नहीं आने देता था। सूरज भी चढ़ा है, खुली हवा भी है, आबो हवा भी है, फिजा भी है, रब की रहमत भी है, करम भी है, वक्त भी गुजर रहा है, 3 सदियां बीत गई हैं, 9 साल ऊपर चले गए हैं, लेकिन ये तौहीद को लेने वाले अल्लाह ने इनके जिस्म को गलने नहीं दिया। आपने सुना है ना कि आशिकों का कफन मैला नहीं होता। मैं जिंदगी च आशिकां नूं जिड्डा मैला वेख्या शायद कदी वेख्या हो। मेरे नबी के जो मुहिब मुती और फरमा बरदार हैं उनके बारे में कहा कि ये नजस नहीं होते। तो जिन्हें जिंदगी च नहा के नहीं वेख्या वो कल नूं कहे जी मेरा कफन नहीं मैला होना। अल्लाह तौहीद वालों के जिस्म को धूप भी नहीं लगने देता, गर्मी नहीं लगने देता, आबो हवा की तासीर उठा लेता है। ऐसा मेरा रब शयाने शान रखता है, खुलेआम रखता है और काट में रखता है और कहा अर्जुन में पढ़ो और याद करो कि मैंने अपनों का कैसे ध्यान रखा है और मैं कैसे रखता हूं। अल्लाह ने इनमें गरीबों का भी जिक्र किया है, बादशाहों का भी जिक्र किया है, वडेरों का भी जिक्र किया है और दोनों तरह के लोगों का, आजाद और पाबंद लोगों का भी जिक्र किया है। अल्लाह कहते हैं वाला तुते मिनहुम हातिमन कपूरा, अगर कोई बागी बन के आजाद बन के मजे मौज मस्ती में रह रहा है इनके पीछे मत लगिएगा। वस्कुर इस्म रब्बिका बुक्रतन व असीला, अपने रब को सुबह शाम याद करते रहिए और रातों को जाग के लंबे सजदे कीजिए। इन्नहा उलाई युहिब्बूनल आजिला, ये रातों की मस्तियां चाहते हैं, दिन का अल्लाह बुल्ला चाहते हैं, ये फौरी नफा चाहते हैं। जाम भी फौरी मिले, काम भी फौरी मिले, शराब भी फौरी मिले, शबाब भी फौरी मिले, कबाब भी फौरी मिले, दुनियादारी मिले। वयज़रून वराहुम यौमन फकीला, इन आजादियों में वो दिन भूल गए जो बड़ा भारी होना है। अब अल्लाह इनके तज़किरे करते करते कहते हैं कि नहनु खलक़नाहुम, इनको पैदा तो हमने किया था, हम चाहते तो पैदा करते हुए मार देते, हम इनकी आंखें बंद कर देते, ये दुनिया का हुस्न न देख सकते, कान बंद कर देते, ये उसकी समातें न कर सकते, हम जुबान के बट से टेस्ट छीन लेते, इन्हें दुनिया का कोई टेस्ट ना आता, नाक से खुशबू छीन लेते। वह शददना असरहुम, और हमने इनके मजबूत आज़ा बनाए। जब मजबूत आज़ा दे दिए तो रब के ही नाफरमान में, बगावत में, अयाशियों में, फहाशियों में, जिद में, हर उस काम पे लग गए और बड़े गबरू दलेर शेर बन गए। वह इज़ा शिअना बद्दलना अम्सालहुम तब्दीला, हमने बड़े बड़े गबरू मार दिए, जवान मार दिए, शेर मार दिए, तब्दील करके उनके घरों के अंदर जो है कोई और दुनिया आ गई। आज उनका नामो निशान नहीं है। इन्न हाज़िही तज़किरा, सर जी सुने जी, आज जन्नत का टिकट। जो लोग अरब मुल्क में रह के हैं मेरे साथ थोड़ी तवज्जो करें, टिकट को वहां क्या कहते हैं? तज़किरा, टिकट, तज़किरा। अल्लाह कहते हैं इन्ना हाज़िही तज़किरा, दुनिया में तुम्हारा आजादी के बावजूद मेरा बन के रहना, मुवाहिद बन के रहना, मुती बन के रहना, फर्मा बरदार बन के रहना, मानने वाला बन के रहना, सरे तस्लीम खम करके रहना, झुके झुके से रहना, मिटे मिटे से रहना, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए टिकट है। दूसरा माना, ये कुरान जन्नत का टिकट है। इन्ना हाज़िही तज़किरा फमन शाअ अत्तखज़ा, जिन्हें लेना ले ले, टिकट वंडी जाते। छोटे होते हुए हम एक नात सुनते थे, बेड़ा मुहम्मद वाला लेंदा पिया तारियां, जिन्हें मदीने जाना कर लो तैयारियां। तो मैंने अम्मा से कहा अम्मा बेड़ा कहां से मिलता है? कहती मौलवी ने पूछ के गए। तो उन्होंने कहा भी इसके लिए टिकट लगता है। कितना टिकट लगता है? उस वक्त बहरी जहाज जाते थे तो उन्होंने बताया इतना लगता है। क्या तरीका कार है, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल लगा। ये कितना आसान है। अल्लाह कहते हैं लो मैं खुद टिकटा देन दिया, इन्ना हाज़िही तज़किरा, ये है टिकट। फमन शाअ अत्तखज़ इला रब्बिही सबीला, इसके लिए जो रूट है वो सिराते मुस्तकीम का है, जो आना चाहता है वो आ जाए। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाह, तुम्हें इतनी आजादियां ना मिलती अगर रब खुद ढील ना देता था। ऐसी ढीला दित्तियां ने तुसी समझ लिया वैसे ही कमजोर, वो कारी कुछ नहीं सकता। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, अल्लाह सारे इल्म रखता है, उसके पास हिकमतें हैं। युदखिलु मन यशाउ फी रहमति, अल्लाह ताला मानने वालों को अपनी रहमत में दाखिल करेगा। वज़ालिमीना अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, अल्लाह ने नाफरमानों के लिए, आजाद मानश लोगों के लिए, मन मर्जियां करने वालों के लिए दर्दनाक अजाब तैयार रखा है। हजरात, कहना चाहूंगा आजादी के मकासद बड़े ही मुख्तसर लफ्जों में अल्लाह का हक देना सीख जाएं।
हमने पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह इसलिए लिया था, बड़ों ने ये नारा लगाया था। चले जो भी उस वक्त की ऊंच नीच थी, दाएं बाएं था, वो छोड़े, जो होना था वो हो गया। दो कौमी नजरिया था, एक अच्छे एक बुरे, एक अल्लाह वाले, एक आजाद, एक बागी और नाफरमान, और एक पाबंद और मुती और फरमाबरदार। आपको किस लिस्ट में रहना है इंतखाब कर लें। 4 दिन की जिंदगी है, मेरे वडेरे चले गए, रहना मैंने भी नहीं। 4 दिन अल्लाह की मान लो, अल्लाह हमारी मानता रहेगा। अगर 4 दिन अपनी मानी, फिर ये सारी जिंदगी रोएंगे चीखेंगे, फिर सुनने वाला कोई नहीं होगा। पहला मकसद आजादी का कि अल्लाह को वादा शरीक मन के आजादी से तौहीद के साथ मानना है। यहां आप आजाद हो जाए, जैसे इब्राहिम अलैहिस्सलाम पूरी कौम से, वालिदैन से, अजीज व अकारब से हो गए थे। मेरे रिश्तेदारों का बड़ा प्रेशर है, पुत्र साडा होके तो तू, दरबारा से पढ़ के तू, ये करके फिर ऐसे। ओ भाई, मैं अल्लाह का बंदा हूं, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूं। यहां कहेंगे जो आप कहेंगे हम मान लेंगे, हम कोई तुम्हारे गुलाम है? बोलिए यहां पे मुवाहिद बन के, मैं अल्लाह का बंदा हूं, जो रब चाहता है मैं वो करूंगा, मुझे उसने भेजा है। सारी दुनिया भी डराए तो डरने की जरूरत नहीं, जिंदगी उसके हाथ में है, जब तक वो नहीं मारेगा कुछ नहीं हो सकता। और याद रहे, ये वो टिकट है तौहीद का टिकट जो रब बंदों को देता है। जिसके पास होगा, क़यामत के दिन एक बंदे के गुना 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 तोला जाएगा। वो कोई इस पलड़े में नेकी भी है? अल्लाह जी नहीं है। अल्लाह कहेंगे हम हिसाब रखते हैं, तेरी एक नेकी है, तूने एक मौके पे मुखलिस होके मुझे पुकारा था, वादा शरीक माना था, तेरे सारे दर रस्ते बंद हो गए थे, तूने हमें सदा दी थी और बोलना था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। फरिश्ते चेत कडियो जरा, हदीस के अंदर है बिताका, छोटा सा पुर्जा कागज का, वो लाया जाएगा, कहेगा अल्लाह ये की है, इन्ने मेरे गुनाहों दी पंडा ने ये नल की बनना। जब दूसरे पलड़े में रखा जाएगा तो वो तौहीद का वजन अल्लाह ज्यादा करके उसे कहेंगे जा, अल्लाह उनमें से कर दे। कोई बईद नहीं है, फखर नहीं है, अकड़ नहीं है, आपका मसलक कोई भी है, लेकिन तौहीद को ले पाबंद बने अल्लाह के, आप बंदे हैं उसके। और दूसरे नंबर पे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गुलामी और पैरवी। गुलामी और पैरवी में फर्क है। मैंने 12 साल नारे लगाए हैं जुलूस के, गुलाम हैं हुजूर के गुलाम हैं। लेकिन सच्ची अंदर की बात यह है, जो दिल में आता था करते थे, बस 12वें महीने आके गुलाम हैं हुजूर के गुलाम हैं, और बड़ा नाम होता था। फिर पता चला कि गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है, ये भी नारा लगाते थे। लेकिन रसूलुल्लाह के कहने के मुताबिक अगर फर्ज नमाज जमात के लिए आप खड़े हुए हैं और हुजूर ने हुक्म दिया है, इधर कहीं ना कहीं इश्तिहार लगा हुआ होगा, 9 से 10 हुक्म है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तरासु इस्तवू 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 एतदिलू सव्वू सफूफकुम हादू बैनल मनाकिब वल अक़दाम। लोगों मिल जाओ, नमाज पढ़ने लगे हो कदम मिला लो, कंधे बराबर कर लो, टखने मिला लो, सब सीधी कर लो, आगे पीछे ना हो। यह है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म और इसकी पैरवी। कौन करेगा? आशिक। मैंने आज तक दुनिया में एक भी आशिक नहीं देखा जो इन 9 हुक्मों को मानता हो। आ बेचारे जेडे सुक्के सड़े जे ने ना भाभी जिन्होंने कहते जे, इन्होंने ही रब ने तौफीक दी है, यही पैर मिलाते मैं वेखे ने, बगरना साडे वर्गे मोटे सेहतमंद खांदे पींदे डलका मारदा रंग इशक तो बहुत है। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से यह बात कहता हूं, 6 बड़े आजमों में आबादी है, 249 मुल्क धरती पे है, एक सिंगल इमाम ऐसा नहीं मिला जिसकी लोग पैरवी करते हो या तकलीद करते हो और उसने किसी तहरीर में लिखा हो या तकरीर में बोला हो कि जो नमाज लिख लो वो फासला रखना जे पैर नहीं जे मिलाना। 50 से ऊपर चला गया हूं और होश संभाले हुए इस चीज को सुनते देखते हुए आज 45 साल से ऊपर यह जिंदगी का अमली मुशाहदा है, नहीं मिलते बेचारे। कैसे गुलाम हैं आप, कैसे नौकर हैं, कैसे मलंग हैं, कैसे मुती, कैसे फरमा बरदार हैं, कैसा इश्क है ये।
कैसा है, क्या करेंगे? एक भी इमाम, सिंगल इमाम, ना इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से कोई सही सनद से कौल मिल सका है, ना इमाम मालिक से, ना इमाम अहमद इब्न हंबल से, ना इमाम शाफी से, ना बाकी आइम्मा से किसी एक ने भी कहा कि जब सफ बनानी है तो बीच में थोड़ा फासला रखना, की जोड़ के इकट्ठे होके घुट के खलो जाते। मिलता तो मैं शायद उसको फिर देखता कि मुझे इनकी माननी है या मुझे इनके बड़े हुजूर की माननी है। सर जी नहीं जो लब्बा, लेकिन नहीं मिलता, कहीं भी फिर भी फासला रखेगा। मर्जी तेरी, जबरदस्ती थोड़ी है। लेकिन अगर हम हुजूर के पाबंद है, कलमे के पाबंद है, वह अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, आपने कभी आकर के हमारा प्यार देखना मिशक के दावे नहीं करते, लेकिन बच्चा भी होवे तो प्यार ना प्यार मिला के खड़ा होता है। ये कोई जाती मर्जियां नहीं है कि घुट के किसी को रखना है तो नप के रखना है तो दब के रखना, नहीं। अल्लाह की कसम, हाँ आए कोई भाई एक दफा कहते हैं, उसके बाद जबरदस्ती नहीं। वो दौर चले गए कि जो सुन्नत पे अमल करदे बेचारे को पता नहीं सी हुंदा, इधर पैर मिलांदे इधरों बूहा टप गया। छोटी दीवारें होती थी मस्जिदों की, उन्हें देखा इमाम की तरफ मिलना है, इधर से इधर, इधर से इधर, सफे इमाम की तरफ मिलेंगे। इस तरफ को आपने क्लोज होना है, जो एंड होगी उस पर पिछली सब वाला आ जाएगा। और आजादी के मकासद में बुनियादी मकसद यह है कि आपके इस्लामियात का जो प्रैक्टिकल है वो आपका हो, और जो हुकूकुल इबाद हैं उन रिश्तों को पाबंदी के साथ निभाते रहें। आजादी का ये मकसद नहीं कि प्यो तो भी आजाद, मां तो भी आजाद, भरावां तो, बुढ़ी तो, बच्चे तो, सब तो आजाद। ऐसी आजादियां अल्लाह की कसम दुख देती हैं। मैं ऐसे नहीं कहता, यूरोप भर में इस आजादी को, कलीसे से आजादी, उन्होंने मस्जिद से आजादी नहीं ली, कलीसे से उन्होंने आजादी ली, अपने माबद खाने से आजादी ली है उन्होंने, चर्च से। उन्हें वहां पे तौरात या इंजील बुरी लगती थी, नतीजा की निकले। एक भी बंदा ऐसा नहीं जेड़ा अब्बे की निस्बत नाल पहचान होंगी है। मौज लगी, ढूंढते हैं, परेशान हैं, वो वक्त ना बनाए। आजाद हैं आप, अल्लाह ने आजाद बनाया है रब की बंदगी करने के लिए। आपने मक्के से आजादी ली कि नहीं? पाबंदियां थी 13 साल की। मदीने में गए, मदीने में जाके पाबंदियां खत्म हो गई थी। बदर है, ओहद है, खंदक है, उसके बाद सुलह हुदैबिया है, फिर खैबर आ रहा है, दीगर गज़वात आ रहे हैं। मेरे पैगंबर को वहां भी पाबंदियां, लेकिन पूरा रेगुलर होकर पाबंदी के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बंदगी नहीं छोड़ी, तौहीद नहीं छोड़ी, उस पर जमे डटे रहे। यही हक है, यही असल है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह जो हमें आजादी मिली है इसके अंदर तेरी तरफ रुजू कर, तेरे मुवाहिद बंदे बने, तेरे महबूब के मुती फरमा बरदार बने, मानने वाले बने। और अल्लाह इतने आजाद मनश ना हो कि दुनिया हुजूर बुलाते रहे और हम कहें कि नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। हुजूर ने कहा मेरी सारी उम्मत जन्नत में जाएगी सिवाय अड़ियल के। जिद्दी बंदा नहीं जाएगा। महबूब जिद कौन करेगा? जिसने मेरा कहना मान लिया, जन्नत में गया। अड़ियल दे कोई मत्थे ते लिखा होता, वो भाई खोते दे मत्थे ते लिखा है खोता है। हलाल था पहले, शरीयत ने बाद में हराम कर दिया। अब घिन आती है कि नहीं आती? तो हुजूर की नाफरमानी भी गधे से ज्यादा शदीद तरीन बदतरीन, गधा खा लेना उतना बड़ा जुर्म नहीं जितना हुजूर की नाफरमानी जुर्म है। वमन युशाकिकिर रसूल मिन बादि मा तबय्यन लहुल हुदा व यत्तबि गैर सबीलिल मुमिनीन नुवल्लिहि मा तवल्ला व नुस्लिहि जहन्नम व सात मसीरा। ऐसे जिद्दी अड़ियल जानवर को, बल्कि जानवरों से भी बदतर को हम उसकी मर्जियों पे छोड़ देते हैं, और जब ये गिरता है तो फिर जहन्नम के गढ़ों में गिरता है। अल्लाह के लिए दुनियावी मकासद, दुनिया मफाद, मैं आजाद, मेरी मर्जी नहीं भाई। हम पाबंद हैं अल्लाह के, हम पाबंद हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो वो कहते हैं बिस्मिल्लाह, जो नहीं कहते हैं मुझसे बच जाएं। फिर मैं देखा वालिदैन को छोड़ देते हैं, रिश्तेदारों को छोड़ देते हैं, हुक्मरानों को चैलेंज कर देते हैं, नहीं ये करना सिया, कर लो जो करना। तो कह दें अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी नहीं होगी। अल्लज़ीना इम्मक्कन्नाहुम फिल अर्दि अक़ामुस्सलाह व आतउज़्ज़काह। हुक्मरानों की भी जिम्मेदारी है, अगर हम उनको आजादी दे दें, हुक्मरानी दे दें, तो पाबंद हैं वो हमारे, नमाज की पाबंदी करवाएं, बंदों को अल्लाह के दर पे लेकर के आए, और हुकूकुल इबाद में उनके माली हुकूक छीने नहीं, उन तक पहुंचाएं।
اچھائی کا حکم دے، برائی سے روکیں. اصل کامیابی ہے یہ ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں جو آزادی ہے اس کے اندر جو پابندی ہے اس کے عمل کرنے کی توفیق بنا دے. یہ پنکھا گھومنے میں آزاد ہونا چاہیے، لیکن اگر اوپر سے آزادی مانگ لے کہ مینو چھت نال بنے آ جائے، اگلے پل ہم اس کو آزادی دے دے تو نیچے آ کے یا آپ کی گردن نہیں یا میری نہیں، یہ خود بھی گرے گا تو اس کے پر بھی ٹیڑھے ہوں گے. ایسی آزادی سے اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. جو حقیقی آزادی ہے اس کی دعا مانگتے ہیں. اللہ ہمارے ساتھ، ہمارے وطن کے ساتھ نرمی بھلائی اور خیر کا معاملہ کرے. وما توفیقی الا الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. احباب گرامی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کلمہ نصیب ہوا ہے، اللہ کی توحید کا کلمہ نصیب ہوا ہے. ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے وہ دھرتی دی جہاں کم از کم ہم آزادی کے ساتھ اذان دے سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، مل سکتے ہیں، بیٹھ سکتے ہیں. حلال و حرام کے اوپر اگر بلا وجہ پریشانیاں خود کھڑی نہ کریں اور ہمارے اپنے نہ کریں تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس کلمے کی اساس پہ جو خوبیاں دی ہیں، جو حسن دیا ہے، جو جمال دیا ہے، جو نعمتیں دی ہیں، اگر ہم جان بوجھ کے ناشکری نہ کریں اور آزادی کا مفہوم پلٹ کے نہ رکھ دیں کہ ہم آزاد ہیں نافرمان بننے میں، آزاد ہیں ملاوٹ کرنے میں، آزاد ہیں دھوکہ دینے میں، آزاد ہیں والدین کی نافرمانی کرنے میں، آزاد ہیں بڑوں کی بے ادبی کرنے میں، ہم آزاد ہیں منمانیاں کرنے میں، آزاد ہیں ہم قانون کو ختم کرنے میں، آزاد ہیں قانون کی مخالفت کرنے میں، آزاد ہیں ہم عدالتوں میں غلط فیصلے کرنے میں، آزاد ہیں ہم من مرضیوں کے. تو یہ آزادی قطعاً ہمارے بڑوں نے نہیں مانگی تھی. انہوں نے جانیں دی تھی، عزت دی تھی، گھر بار دیے تھے، بڑی بڑی قربانیاں اور نذرانے دے کے اگر یہ دھرتی اور خطہ لیا تھا تو کم از کم کچھ لوگ تو اس بات کو سمجھیں اور کوئی دو دانے ہی گھر چوں چنگے نکل آن. بلکہ بزرگ کہندے سی یار دانا تو ایک ہی کافی ہوتا ہے، کام دا نکل آئے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں چن لے، وہ دانا بنا دے کہ جن کو صحیح معنوں میں دانا بینا عقل مند ہوش حواس والے اللہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا کہا جا سکے. اگر ہم سے ماضی میں کوئی کمی بیشی ہوئی ہے تو ہم ان آزادیوں اور بے باکیوں سے اللہ کی پناہ میں آتے ہیں. ہم اللہ کے پابند ہونا چاہتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مطیع اور فرما بردار، اور دکھاوے کے بغیر، نمود کے بغیر، بتانے کے بغیر، ایک دوسرے کو گرانے کے بغیر میں اپنے وجود کی کمی دیکھوں کہ کمی کہاں ہے تو انشاءاللہ العزیز یہ مسئلہ آج بھی حل ہو سکتا ہے. اللہ میرے وطن کو رفعت عطا فرما الہ العالمین. جو یہاں اندرونی بیرونی دشمن اس دھرتی کے، اس مٹی کے، یہاں کے لوگوں کے، تیرے کلمے کے، تیرے دین کے، اللہ ہمیں ان سے نجات دے. الہ العالمین وہ بنا دے کہ جن سے تو راضی ہوتا ہے. اللہ بیماروں کو شفا دے. الہ العالمین جتنے بھی پریشان حال ہے مالی طور پہ یا کسی بھی اعتبار سے اللہ سب کی پریشانیاں دور فرما. اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما. سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا اله الا انت استغفرک واتوب